Warm good afternoon to all of you. My special regards to the faculty of R&T University Bhopal. And today, today we will try to see to understand the basics of intellectual property rights. What is the procedure involved in registering the intellectual property rights, and we will take some of the we will go through examples. We will take this particular presentation mostly through examples so that you can understand the practical issues. Rather than going into theory, we will go into the how practically things are happening in intellectual property world, and how these issues can be resolved, and how we can take care of our intellectual property, as well as uh, uh, we can avoid the infringement of others intellectual property. तो हमें दोनों एस्पेक्ट देखने, हमें अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी प्रोटेक्ट करना है, साथ के साथ में हमें ये भी देखना है कि हम किसी और का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंज ना करें. As per my understanding, I think intellectual property rights, already most of the people have heard about IPR. And if not, then we can see the slides, the very basics of the intellectual property rights, then we can switch over. So actually, I'm just sharing my screen. Now screen is visible, ma'am? Yes, sir, it's visible. And I think if you can take feedback from the participants also, whether it is visible, then we can continue the slides. Sir, it is visible. Make it Visible, a full view. It's Full in view. the slide view. Now? Yeah, sir. Now Okay. it's. I think we should come to the first slide. Yeah, sir. So this is the first slide. That is the intellectual property rights, and we will deal with the issues in Indian context, because since we are resident of India, so the Indian law will govern us how our intellectual property to be protected in India, how it will be enforced in India. So we have to see the things in Indian context, right? So first of all, we have to see that in intellectual property rights there is a very crucial word, that is the property. So generally, what is the connotation of property? Generally, for you say that this particular car is my property, this particular building is my property, this particular piece of land is my property. Okay, this particular bike is my property, this particular furniture is my property, this particular laptop is my property. So basically, there is a ownership issue with the intellectual property, with any property. So for physical property, you can own it, you can purchase it, you can sell it. There is a sell deed procedure. There is a you can purchase a property but just by paying money, and they will give an invoice to you, and you are the owner of the property. This is the general concept. But at the same time, intellectual property is also property in which there are some regulations, some certificates issued by the government of India. Suppose you register a trademark, then the trademark certificate will be issued. If you register an industrial design or the design, then the design certificate will be issued. If you registered either a process or a product via patent, then patent certificate will be issued. Likewise, if you are protecting your scientific to your research work, your writing, your paper writing, then a copyright will be issued. So basically, we have four types of intellectual property in general. One is the patent, one is the trademark, one is the copyright, and one is the design. So all the students should understand that there are basically four types of IP in general. One is the patent, one is the design, one is the copyright, one is the trademark. And the good thing is that the government of India is recognizing all these properties, and they will issue a certificate once they confirm that the particular innovation, the particular trademark, the particular copyright belongs to you. So we should be aware that there is a system of protection of your intellectual property. तो आपका जो भी intellectual property है, वो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, ताकि आप कल प्रूव कर सके कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. जैसे आप लोग लैपटॉप लेते हैं और कभी आपको किसी के साथ किसी का लैपटॉप या मोबाइल फोन का थेफ्ट हुआ हो, कुछ चोरी हुआ हो, तो जब आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर करते हैं, या कुछ भी इस तरह का एक डायरी बुक नंबर रजिस्टर कराते हैं वहां पर, तो आपसे पूछते हैं कि इसकी इनवॉइस की कॉपी कुछ है क्या आपके पास, तो आप लगा सकते हो. तो that means that invoice copy is your proof that the intellectual property that mobile phone belongs to you, the laptop belongs to you. ठीक है. उसी तरह से अगर आपका कोई
अगर यू हैव अ कार और अ बाइक, तो आपको एक आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। कोई भी पुलिस वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसकी ओनरशिप प्रूव कीजिए, तो आप आरसी दिखा सकते हैं। तो वहां एक सिस्टम है, तो उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी एक सिस्टम है ओनरशिप का, और दे विल गिव यू प्रॉपर सर्टिफिकेट्स एंड देन यू कैन एस्टैब्लिश द ओनरशिप ऑफ योर प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने जो नॉर्मल प्रॉपर्टी, सिविल प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी ओनरशिप है, तो यहाँ भी ओनरशिप है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक इश्यूज विद प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेडमार्क। सो यहाँ पर देखिए ट्रेडमार्क के इश्यूज किस तरह से होते हैं, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि देयर इज अ ग्रुप नोन एज पार्ले ग्रुप, एंड नाउ दे हैव अ रेंज ऑफ बिस्किट प्रोडक्ट लाइक मोनाको, then hide and seek, then crackjack. So some other company, that is the Future Consumer Limited, they launched their product listing as follow. They tried to copy the Monaco and they launched the Krakow, and you see the packaging style almost similar, and you can see the biscuit shape is also round, and last word is O, Monaco Krakow, and the packaging is same. So these types of issues may come under the trademark infringement. Then hide and seek. So here we have last word seek. Now they have seek, they have peek, or peekaboo, and see the shape of the biscuit and the color blue is same. So this is also trademark related issue. Then Cracker King and Crackjack. Crackjack is Parle, Cracker King is this Future Group. So you see that same square shaped, rectangular shaped packaging with a stressed packaging. Plus the biscuit shape is also rectangular square in nature, and the packaging is yellow color, yellow silver color, so golden yellow color. So what it depicts that Future Group, Future Consumer Limited is trying to copy the products of the Parle, because you can see in both the 3 cases there may be no coincidence. Monaco, Krakow, hide and seek, peekaboo, the same biscuit design, same color combination, and the Crackjack and Cracker King. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका ट्रेडमार्क कोई मिसयूज करना चाहता है, कोई आपकी गुडविल का मिसयूज करना चाहता है। तो जो इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, जहां पर आपके एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन की, उसकी लोगो की, उसके ट्रेडमार्क, उसकी जो नेम की अगर कोई इशू होता है आपको कि वहां कोई कॉपी कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो दोस टाइप ऑफ इश्यूज में कम अंडर, मे बी बुक्ड अंडर द ट्रेडमार्क इशू। ओके, so this is one point. Now बजाज में आप अपना वो उसको बंद कर दीजिए, मुझे लगता है वॉइस का, क्योंकि आपके साथ बैकग्राउंड में शायद कुछ कॉलेज में डिस्टर्बेंस होगा। तो बेसिकली नाउ यू सी द अनदर स्लाइड। डेटॉल, आप लोग जानते हैं डेटॉल इज अ वेरी फेमस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, whether the hand wash or whether the your day-to-day soap solution. Okay, so now another Mohit Pharmaceutical, another company, has launched a similar product with the brand Devtol, DEVTOL. Now they replace one T by only V, and see the packaging style is almost similar. Green color circle, green color circle. Here plus sign is in white, either here plus sign is in red, and almost similar packaging. So any ordinary person may easily confuse and may purchase the Devtol instead of Dettol. So ultimately the company Dettol, that is the brand owner is the Racket Banking sir. They approach the Delhi High Court and take the order in their favor. And now court has ordered that the Mohit Pharmaceutical cannot launch their product Devtol in the market, and they have to means bring back the products from the market, from the retailer wholesaler to the godown and destroy it. So those type of implications are there. If you try to copy some other products, and if the court order is against you, then you might be in trouble and you have to bear a huge loss. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहित फार्मास्यूटिकल्स को अपने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से कॉल बैक करने पड़े, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो इतना सारा लॉसेस वगैरह हुए, और प्लस फिर भी ब्रांड चेंज करना पड़ा। तो देयर इज नो मीनिंग इन यूजिंग द सेम और सिमिलर मार्क विच इज ऑलरेडी रन बाय सम अदर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके प्रति यू हैव टू वेरी वेरी सिंसियर, यू हैव टू वेरी वेरी कॉशियस। सो ये सीन था। अब कुछ ऐसे इश्यूज भी आते हैं, प्योरेल है। अब प्योरेल ये जो आजकल सैनिटाइजर में काफी, हैंड सैनिटाइजर के लिए काफी मतलब जेल, इट्स अ गुड ब्रांड। नाउ समवन इफ यू आर लॉन्चिंग प्योरवेल, देन इट कम्स अंडर इन्फ्रिंजमेंट इशू। यहाँ पर बोलेंगे कि कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेसी टाइप कर रहे हैं, या फिर एक ट्राई टू मींस कस्टमर को गुमराह करने की, डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो इश्यूज आप लोग देख रहे हैं ट्रेडमार्क में आते हैं, और
द मैसेज फॉर यू इज दैट यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन सच इशू. आपको इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के ट्रेडमार्क को अडॉप्ट नहीं करना जो सिमिलर है ऑलरेडी किसी. तो ये ट्रेडमार्क का एडवांटेज होता है कुछ. और मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको. जैसे कि आपका ट्रेडमार्क एक वर्ड मार्क भी हो सकता है. रेनबैक्सी. रेनबैक्सी इज अ वर्ड मार्क. इट कैन बी एब्रिविएशन v.i.p. इट कैन बी letters BMW. It can be numerals 8 p.m. or 5:55 washing cake, whatever it is. It can be arbitrary word like apple for computers. So apple is a fruit item, but if you are using it for electronic item, then fruit word is used for some electronic item. Cherry for polish. So cherry is a fruit, and if you are using for some chemical for polishing, so it's arbitrarily assigned. उनका कोई correlation नहीं है, लेकिन these are also good marks. So ये सब मार्क्स की कैटेगरीज होती है. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मार्क, व्हाट इज द रीजन टू अडॉप्ट द मार्क. ये एक सिंपल ड्रिंकिंग वाटर है आपका. ठीक है. आप लोग जैसे भोपाल यूनिवर्सिटी आपकी भोपाल में, सपोज कीजिए आप हबीब, इफ यू गो टू हबीबगंज स्टेशन, ओके, टू कैच द ट्रेन फॉर जबलपुर. आपको जबलपुर जाना है, आप हबीबगंज स्टेशन पहुंचे, और समर का टाइम में आपको पानी का बोतल लेना है. अब वहां जो स्टेशन पे जो वेंडर्स होते हैं, उनसे आपने बोला कि गिव अस अ ड्रिंकिंग वाटर 1 लीटर 2 लीटर बोतल ऑफ ड्रिंकिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. अगर वो आपको ये बोतल सप्लाई देगा, तो आई थिंक यू विल डिनाई, यू विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस बोतल, बिकॉज यू विल सी ओके सर. अब वो बोलेगा सर इट्स अ गुड वाटर, इट्स अ गुड क्वालिटी वाटर, इट्स अ सर्टिफाइड वाटर. ओके, काफी कुछ है, BIS स्टैंडर्ड सब कुछ है. स्टिल यू विल बी रिलक्टेंट, you will not be able to accept this particular bottle, okay, this water. So reason क्या है? भले वो आपका वेंडर आपका फ्रेंड होगा, वो बोलेगा नहीं यार इट्स अ गुड, आप ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक इशू रहेगा. अब आप नेक्स्ट शॉप पे गए, उसने क्या किया, इसी बोतल को उसने एक लेबल लगा दिया, बट नाउ यू आर कन्विंस्ड. सो अब नाउ यू कैन सी दैट व्हाई कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट द ट्रेडमार्क, because you are purchasing the product based on the value of the trade. आपको पता है कि बिस्लेरी का पानी तो इसकी सोर्सिंग प्रॉपर होगी, इसमें जो pH फैक्टर वगैरह बैलेंस्ड होगा, इसके अंदर इंप्यूरिटीज वगैरह का जो भी वो सब बिल्कुल नहीं होगी इसमें. तो वो सब आप लोग देख के, आपको पता है काफी पुरानी कंपनी, काफी लंबा बिजनेस है, तो ये ट्रेडमार्क की वैल्यू होती है. तो इसीलिए कंपनी, अगर आप ट्रेडमार्क का मिसयूज करते हो, तो दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, बिकॉज देयर गुडविल विल बी अफेक्टेड. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. ये एग्जांपल देखिए आप. What people are doing? Bisleri is the original brand. People are using Bisleri, Bilseri, Belseri. So similar marks people are adopting. Why? क्योंकि we are men of imperfect recollection. हम लोग कभी भी पूरा, हम लोग एक इमेज बना लेते हैं यार. बिस्लेरी कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है, B से स्टार्ट होता है, 7 लेटर वर्ड है, IE. लेकिन हम उसको पार्ट बाय पार्ट नहीं चेक करते, हम लोग टोटलिटी में देखते हैं उसको. ठीक है. जैसे RNTU है, अब RNTU की जगह में RMTU कर दूं, M for mother, so people will confuse that both are same university, because we see things in totality, not in parts. ठीक है. We are men of imperfect recollection. This is the legal jurisprudence. Okay. So यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग जल्दी में, गर्मी हो रही है, ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है, बड़ी लोगों को जल्दी है, तो people will purchase Belseri, Bilseri, Bisleri. Even वो पानी भी पी के फेंक भी देंगे, लेकिन वो पता नहीं चलेगा. कुछ लोग, some of the people might be able to notice, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी. अब लोग, व्हाट इज पीपल साइकोलॉजी, अरे 15 रुपए है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे. तो इसलिए कंपनीज बच जाती है. तो बट एट द सेम टाइम इट्स अ बिग इन्फ्रिंजमेंट इशू. जैसे कि एक बार वंस आई वाज इन सूरत इन SVNIT, एंड देयर वाज अ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू अस, 200 ml बोतल, जो छोटी बोतल आती है, उसका ब्रांड था एक्वापीना, AQUAPINA, which is very much similar to Aquafina. So means just these are issues of extent where the trademark might be infringed. So आपको इन चीजों को ध्यान रखना है. We should be careful while purchasing a product. You can, है ना, ठीक है. और आप कंपनी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, सर आपका infringing प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है. So ये these are the things. और जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. 2 तरह के मार्क होते हैं. एक तो वन इज अ डेस्क्रिप्टिव मार्क, वन इज अ कोइन मार्क. तो जैसे शादी.com है, बिग बाजार है, स्वीट कॉर्नर है, ये दीज विल कम अंडर द डेस्क्रिप्टिव मार्क, क्योंकि शादी.com से आपको पता चल रहा है कि क्या बिजनेस है इनका. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू द
they are into matrimonial related matchmaking websites. Okay, Big Bazaar, so you can identify it's a market where all the items, household items, are available in a single roof. Sweet corner, you can identify it's a sweet shop where sweets and rasgulla and all these things, confectionery items are available. So this is descriptive mark. But if I say Zomato, I say Kodak, I say Lakme, I say Swiggy, you won't identify the service. Swiggy से पता नहीं चल रहा कि ये लोग यार जो अपने जो फूड आइटम सप्लाई करते हैं, डिलीवरी करते हैं, नहीं पता चलता. Zomato से पता नहीं चल रहा आपको. Kodak से you can't identify it's a camera. ओके, और लैक्मे से पता नहीं चलता है कॉस्मेटिक्स है, तो कॉलगेट से पता नहीं चलता है ये टूथब्रश टूथपेस्ट है. तो वो दोज मार्क्स आर स्ट्रॉन्ग मार्क, because if there is a big bazaar, I can use mega bazaar because bazaar is a common word. If they are using shadi.com, some people may use second shadi.com because shadi is common to trade, anyone can use it. So if a Pizza Hut is there, then I can have Pizza Prime because pizza is common to trade. Okay, so those things, those are the advantages of using coin mark. I cannot have Zomato Bhopal, I cannot have Zomato Prime because Zomato is already coin mark. If I use Zomato Prime or Zomato Smart, people will correlate it with the Zomato only. जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ स्विगी फर्स्ट, तो आप बोलोगे सर ये स्विगी की सर्विस है, दिस इज सर्विस ऑफ स्विगी. तो वो चीजें सामने आती है. मैं कहता हूँ ओला स्मार्ट, आप सीधा आप इसको ओला से कोरिलेट करोगे. लेकिन अगर मैं कहता हूँ पिज्जा प्राइम, तो आप उसको पिज्जा हट से कोरिलेट नहीं करोगे क्योंकि पिज्जा इज कॉमन टू ट्रेड. सो दोज थिंग्स आर एडवांटेजेस व्हाइल यूजिंग द कोइन मार्क. तो हमेशा आपने को कोइन मार्क की तरफ जाना है. ओके, और यू कैन गो फॉर, जैसे फ्लिपकार्ट भी आपका कोइन मार्क है, एक्सोन भी कोइन मार्क है. ओके, लेकिन पिज्जा हट, टेस्टी ट्रीट, डेयरी बेस्ट ये सजेस्टिव मार्क है. इससे पता चल रहा है बिजनेस किस चीज का, आपका किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डील करें, सर्विस में डील करें. और आप आर्बिट्ररी वर्ड में जा सकते हैं, जैसे डव सोप है तो डव इज बर्ड, तो उससे आपको पता नहीं चला कि बिजनेस क्या है. एप्पल फ्रूट आइटम है, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक से डील करें, तो दोज आर आल्सो गुड मार्क. इंडिया के बाहर भी इश्यूज ट्रेडमार्क के होते हैं, जैसे कि प्यूमा इज ए बिग ब्रांड, someone has launched the poodle in the same slanting, one is a leopard and one is a poodle brand of dog. Okay, but the angle is same, so people from distance angle can confuse it's the puma. So these are also type of infringement. अब आप लोगों में से कुछ लोग इंदौर से भी रिलेशन होगा, आप लोगों को इंदौर आना जाना रहता होगा. तो इंदौर में एक इशू आता है इस तरह का आपके, कि पिज्जा हट का एक फ्रेंचाइजी था, उसने अपना फ्रेंचाइजी पिज्जा हट से छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ पिज्जा घर. एंड यू सी पिज्जा घर तो ठीक है, लेकिन उसने घर को देखिए आप, द वर्ड घर वाज इम्बाइब्ड इन अ हट शेप्ड. घर के ऊपर देखिए आप हट बनी हुई है. तो इट वाज अ मेलाफाइड इंटेंशन. अगर वो पिज्जा घर यूज करता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि पिज्जा कॉमन है, उसका हट है, हमारा घर है. लेकिन उसने जो घर के ऊपर जो हट बनाई है ना, देखिए आप रेड कलर की, तो उससे उसका इंटेंशन प्रूव हो रहा था कि दे वांट टू कॉपी द पिज्जा हट. सो कोर्ट ने उनको फिर मना किया कि यू कैन नॉट कंटिन्यू द वर्ड पिज्जा घर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. सो ये जो इस तरह के जो भी इश्यूज है आपके, वो ट्रेडमार्क इश्यूज होते हैं, और यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल अडॉप्टिंग एनी ट्रेडमार्क. इट मे लीड टू वेरी डिजास्टर्स इफेक्ट एंड आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं. इस तरह से yahoo.com is a registered domain name, registered email server. Someone registered yahoo.co.in. So ultimately they have to surrender this to Yahoo company, because both are indicating the same source. Yahoo.com पढ़ो, yahoo.co.in पढ़ो, ऐसा it feels that both belongs to the same person, Yahoo company. क्योंकि जो .in है, जो टॉप लेवल डोमेन है .co.in, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मेन आइडेंटिफिकेशन याहू से हो रही है. तो यहाँ पर जो आपका, कुछ लोग कहते हैं सर .org नहीं मिल रहा तो हम लोग .com बुक करा देते हैं, या .com नहीं मिल रहा .in बुक करा देते हैं. They should be careful. If the service is same, goods are same, it may lead to infringement. Okay. अच्छा, there is one more issues that is with the trademark. That suppose there is a person, there is a company Bata, they are in the shoes sector, footwear sector, और आप लोग सोचते हैं ठीक है सर वो तो फुटवेयर में डील कर रहा है, आई विल प्रिपेयर अ सेविंग मशीन, मैं इससे सिलाई मशीन बनाता हूं क्योंकि मेरा तो ब्रांड सिलाई मशीन के लिए, वो लोग सिलाई भी मशीन बनाते नहीं है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कोनोटेशन.
अगर कोई फेमस ब्रांड है, वेल नोन मार्क है, अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और काफी फेमस मार्क है, तो आप उसको दूसरे गुड्स पे भी यूज ना करें, अदरवाइज इट विल लीड टू इन्फ्रिंजमेंट। जैसे सैमसंग, अब सैमसंग इज फॉर जनरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, राइट, इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी। अब आप लोगों की सैमसंग के सपोज कीजिए आप स्टेशनरी बनाना शुरू कर दे, सैमसंग के पेन बनाने लग जाते हैं, और जनरली सैमसंग पेन वगैरह नहीं बनाता, तो बट इट विल लीड टू इन्फ्रिंजमेंट, पीपल विल थिंक दैट सैमसंग इज लॉन्च द स्टेशनरी प्रोडक्ट आल्सो। सो वो चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। एक इस तरह का इश्यूज आपका हुआ था। एक BMW इज अ फेमस ब्रांड फॉर फॉर कार्स वगैरह, जो काफी लग्जरीज कार आती हैं, जो मतलब हाई प्राइस सेगमेंट की कार आती है BMW। अब समवन हैज लॉन्च्ड दैट DMW, देश्वर मोटर वर्क्स, एंड देयर इज मार्क इज DMW। सो बट देवर इन द ई रिक्शा, जो आजकल ई रिक्शा जो आते हैं आजकल, जो अपना थोड़ा सामान वामान ढोने में, जो लगेज में काम आते हैं, तो उसमें उन्होंने लॉन्च किया था, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, भानु, ओके, सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, सो DMW वाज इन ई रिक्शा एंड BMW इज न इन लग्जरी कार सेगमेंट। सो उन्होंने आर्ग्यू किया, सर हम लोग तो ई रिक्शा मार्केट में, BMW ई रिक्शा में नहीं है। फिर भी कोर्ट ने यही बोला कि बोथ आर इन द बोथ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट एंड इट मे लीड टू कंफ्यूजन, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप सुजुकी का, मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन हो तो कार आता था, अभी उनका सुजुकी का अभी बाइक्स भी आ रहे हैं, टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं, तो पता नहीं कब कौन सी कंपनी किस सेगमेंट में लॉन्च कर दे अपना प्रोडक्ट, तो उसको वो फ्रीडम रहती है। तो दैट्स व्हाई इट वाज टोल्ड दैट DMW कैनॉट कंटिन्यू विद द नेम DMW, राइट। इस तरह से आप लोगों ने कभी देखा होगा कैंट मिनरल आरओ का एडवर्टाइजमेंट भी काफी आता है आपका, तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले कैंटेक वाटर आरओ सिस्टम करके किसी ने लॉन्च किया, तो फिर जब कैंट कंपनी ने इस पे कोर्ट पे जाकर कंप्लेंट किया कि भाई कैंटेक इज सिमिलर टू कैंट, और उनकी वेबसाइट भी इन्होंने cantekro.com शुरू कर दिया था, तो फिर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि इट शुड बी स्टॉप, क्योंकि कैंट यूज करो चाहे कैंटेक यूज करो, इट लुक सिमिलर, इट कन्वे द सेम मीनिंग, क्योंकि टेक रेफर्स टू टेक्नोलॉजी, सो कैन टेक्नोलॉजी व्हाट एवर इट इज। तो इस तरह के जो भी इश्यूज आपके आते हैं ट्रेडमार्क में बुक होते हैं, और we should be careful. This is my submission. And last slide for trademark is that this particular slide. Basically, जो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर है, स्टेशनरी आइटम है, या कोई और चीजें हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन अलाउड है, ओके। लेकिन मेडिसिन के केस में अगर ट्रेडमार्क का कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, देन इट मे लीड टू डिजास्टर। ये आपकी किसी की जिंदगी के साथ भी इशू हो सकता है, कोई लाइफ, किसकी लाइफ थ्रेट हो सकती है, कोई किसी को डेथ हो सकती है। एक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज देयर, Medzol, in both the cases you see there is a brand Medzol, right? One is pantoprazole, which generally used for the person who has some gastric issues, जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, हार्ट बर्न प्रॉब्लम होता है, उनको जनरली पेंटाप्रोजोल का खाली पेट एक टेबलेट लेना होता है सुबह, इसके इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इनका ब्रांड था मेडजोल, और दूसरी कंपनी का ब्रांड है मिडाजोलम, दैट इज फॉर, जैसे कि आपको जहां कहीं लोकल एनेस्थीसिया देना हो, लोकल इंजेक्शन, जहां पर कोई सर्जरी करनी है, तो पर्टिकुलर पार्ट को आपको थोड़ी देर के लिए उसको सुन्न करना पड़ता है, उसको अनकॉन्शियस करना पड़ता है, ओके। तो वहां पर आप लोग जो मिडाजोलम इंजेक्शन, उसका भी ब्रांड मेडजोल था, तो बोथ वर कमिंग विद द सेम ब्रांड, सो इट वाज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड अल्टीमेटली ऑन द कंप्लेंट वन ऑफ द ब्रांड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज अगर मेडजोल अगर दोनों एक ही स्टोर में मिलेगा, और मैंने पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन मांगा, मुझे मिडाजोलम लगा दिया, या मैंने मिडाजोलम का इंजेक्शन मांगा, मुझे पेंटाप्रोजोल को लगा दिया, तो इट में लीड टू अ वेरी डिजास्टर्स एंड इवन फेटाल टू द पर्सन, उसकी डेथ भी हो सकती है गलत इंजेक्शन लगने से। तो ट्रेडमार्क के इश्यूज क्लास 5 या मेडिसिन के सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो मेरा जो स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज है कि जब भी अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें, तो थोड़ा देखें, थोड़ा सर्च करें, थोड़ा आइडेंटिफाई करें मार्केट के अकॉर्डिंग कि आपका जो सिलेक्शन है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड से मिल तो नहीं रहा ना, अगर मिल रहा है तो आपको चेंज कर देना चाहिए, दैट इज द बेस्ट। अगर आप इसे कॉपी करें तो इट्स नॉट गुड फॉर यू एज वेल एज फॉर हिम। क्या पता आपका ब्रांड कल उससे भी ज्यादा चल जाए, और फिर वो उसका वाइस वर्सा बेनिफिट ले ले, तो आपको भी नुकसान हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। तो इसीलिए यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट योर ट्रेडमार्क। सो ये आपका ट्रेडमार्क का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जिसको आपको ध्यान रखना है। नाउ अब कॉपीराइट की बात करते हैं। तो कॉपीराइट बेसिकली क्या है आपका, कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया। जो भी आप लोग अपना
अपना जो भी आपका राइटिंग्स है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, आप कोई साइंटिफिक पेपर लिखते हैं, कोई पोएम्स लिखते हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाते हैं, वॉट एवर यू ड्रॉ ऑन द पीस ऑफ पेपर कैन बी पार्ट ऑफ कॉपीराइट। एक आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, आपका एक रिसर्च पेपर भी हो सकता है, कुछ भी आपका जो भी आपका इस तरह का जो भी वर्क है वो आपका कॉपीराइट में आएगा। प्लस इसमें सबसे द ब्यूटी ऑफ द कॉपीराइट इज दैट इट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया। अगर इफ आई राइट अ बुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग ऑन some particular mechanism of reinforcement, okay, reinforcement cement RCC, then other can also write a book on the RCC logic, but his expression will be different, his presentation will be different, his points will be different, his diagram may be little different, but the logic may be same. So copyright is on expression not on idea. आपने पुरानी मूवीज देखी होगी काफी सारी जिनमें लगभग आपको लगता होगा सेम स्टोरी है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, उनके कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होते हैं, उनकी कोरियोग्राफी डिफरेंट होती है, उनके डायलॉग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन मीनिंग सेम होता है, सेम कंसेप्ट होता है, सेम स्टोरी होती है। तो ये जो कॉपीराइट में सबसे बड़ी बात है कि यू कैन नॉट चैलेंज दैट सर ही इज आल्सो यूजिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, हिज सब्जेक्ट मैटर में भी सेम बट हिज एक्सप्रेशन शुड बी डिफरेंट। जैसे कि आपके भोपाल में उबर और ओला आपका कैब सर्विस चलता है, दोनों का सेम सिस्टम है, आप लोग कैब बुक करिए, योर ड्राइवर नंबर विल कम, ओके, यू कैन सेलेक्ट येस और नो, यू कैन पे, सो एवरीथिंग इज सेम, बट उनका जो प्लेटफॉर्म अलग है, उनका स्क्रीनशॉट्स अलग है, उनके बटन्स का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन लॉजिक सेम। तो कॉपीराइट में आपका एक लिमिटेशन है कि इट्स ऑन ओनली ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया, ठीक है। तो अगर मैं भी न्यूटन्स लॉ पे बुक लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो और आप भी लिख सकते हैं, आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट हो, तो ये कॉपीराइट की कैरेक्टरिस्टिक, राइट। एक कॉपीराइट की सबसे एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपीराइट इज दैट यू शुड फिक्स द वर्क ऑन पर्टिकुलर मीडियम। जब भी आपको कुछ लगे कि आपने कुछ पेपर लिखा है या कुछ आपने कुछ पोएम लिखी है, कुछ भी आपने वर्क क्रिएट किया है, तो आपको उसको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पे या पेन पे टाइप करके, स्कैन करके या ईमेल करके आपको उस डेट को सिक्योर करना है कि पर्टिकुलर डेट पे कंटेंट आपके कंट्रोल में था। सपोज यू नॉट सिक्योर्ड द कंटेंट एंड आफ्टर 10 days someone theft your content, किसी भी तरह से आपका कंटेंट चोरी कर लेता है, वो उसको अपने नाम पे पब्लिश कर लेता है, देन व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस वर्क। आप वो ईमेल दिखा सकते हैं, सर देखो 10 दिन पहले मैंने इस ईमेल को अपने आप को किया था और मेरा कंटेंट है। अदरवाइज यू कैन रजिस्टर योर कॉपीराइट, जो फॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप इतना लंबा प्रोसीजर भी अपनाना नहीं चाह रहे अभी, तो आप यू जस्ट ईमेल योर वर्क टू योरसेल्फ और योर फ्रेंड, so that you can prove that sir before 10 days I have this content, now they are publishing it, so they have theft on our work। so ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। so मैंने पहले ही बोला था, नो प्रोटेक्शन ऑन थीम और आइडिया, ओनली प्रोटेक्शन ऑन एक्सप्रेशन। आपने उसको किस तरह से लिखा है उस पर आपका राइट है, उसके आईडी पे कोई राइट नहीं आपका। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करते हैं, तो उसके लिए पेटेंट का इंडिया में जनरली प्रोविजन नहीं है, उसके लिए आपको कॉपीराइट के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए आपका पेटेंट का प्रोविजन है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में, अगर आपने नोवल हार्डवेयर के साथ उसको इंप्लीमेंट किया है या आपने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है, तब आप जा सकते हो, अदरवाइज इट इज ओनली फॉर कॉपीराइट। सो ये सब थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है आपको। और अब नेक्स्ट जो लॉजिक है, आपका कंसेप्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन का है, राइट। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में बेसिकली क्या करते हैं आप लोग, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, आउटर अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यू कैन सी देयर आर 3 माइक्रोस्कोप, वन इज ऑफ प्राइमोवर्ट ब्रांड, सेकंड इज क्लेस्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज मतलब उसका ब्रांड दिख नहीं रहा अपने को, तो थर्ड वन इज अनदर माइक्रोस्कोप। सो वी कैन सी दैट ऑल द 3 माइक्रोस्कोप हैव द सेम रिजोल्यूशन कैपेसिटी, दे कैन रिजोल्व द ऑब्जेक्ट टू 100 times, 100x या 150x, whatever it is. But if the function is same, then what is the difference? The only difference between these 3 objects is the design, shape and configuration, outer appearance. So those outer appearance can be protected as a industrial design. Now you can see this is a compass, so it is used to make a circle, okay. अब आप देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है वो दोनों कंपास से बिल्कुल बराबर बनेगा, इट विल बी सेम। अब जब फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें भी एक दिस इज वन एडवांटेज कि जो ब्लू सर्कल है, ब्लू वाला जो कंपास है, वो बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे, तो उसकी मार्केटेबिलिटी ज्यादा है, कमर्शियल वायबिलिटी ज्यादा है उसकी। तो डिजाइन में भी आपको ये लगेगा कि
कि उसमें भी कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, भले फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उसको यू कैन हैव कमर्शियल यूटिलिटी. अब these are the dustbin, they are having the same article, same function, but the shape is different. So this is a part of design. Now you can see this water bottle packaging. कौन सी कंपनी का है? कोई if anyone can tell? कोई बोल भी सकते हैं या इसमें टाइप भी कर सकते हैं. हाँ, Kinley. So basically this is the Kinley packaged drinking water. This is Kinley, but how you identify it? Kinley तो कहीं भी नहीं लिख रहा है इसमें. Kinley is not mentioned anywhere. According to the Shape. color, Okay. Shape and configuration. So ma'am has identified the particular bottle with the shape and configuration. Okay. So shape is also intellectual property. That's why we are registering the shape as an intellectual property, because it is showing some sort of connection with the company, with the manufacturer. तो पायलट पेन का भी एक पर्टिकुलर शेप है आपका, रेनॉल्ट पेन का भी एक पर्टिकुलर शेप है, मर्सिडीज कार का भी एक पर्टिकुलर शेप है, हुंडई गाड़ी का कार का भी एक पर्टिकुलर. तो वो जो शेप्स एंड कॉन्फ़िगरेशन की जब बात होती है वहां पर आप डिजाइन में रजिस्टर कर सकते हैं. ओके. जैसे कि ये राइस कुकर है, तो राइस कुकर का भी आप पर्टिकुलर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छा, तो बेसिकली डिजाइन में आपको क्या, आपको सारे उसके व्यूज सबमिट करने होते हैं. आपका फ्रंट व्यू कैसा है, लेफ्ट साइड व्यू कैसा है, राइट साइड व्यू कैसा है, बैक व्यू कैसा है, पर्सपेक्टिव व्यू कैसा है, टॉप व्यू कैसा है, वो सब आपको इसमें रजिस्टर करना होता है, उसमें आपको सबमिट करना होता है. उसके बाद वो आपका डिजाइन का नोवेल्टी चेक करके, अगर इफ द डिजाइन ऑफिस फील्स दैट इट इज नोवेल, देन दे विल रजिस्टर डायरेक्टली. अगर उनको कुछ इंक्वायरी है, कुछ कंपैरिजन आपको बताएंगे, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका डिजाइन क्यों नोवेल है. तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है डिजाइन का. नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द पेटेंट, एंड व्हिच इज आई थिंक वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट. सो आप लोग में से काफी लोग पीटर इंग्लैंड के गारमेंट्स आप लोग यूज करते होंगे, और इवन आपके जो सिटीज में काफी काफी मेरे हिसाब से आई थिंक 10 से 12 आउटलेट पीटर इंग्लैंड के जरूर होंगे अलग अलग एरिया में. ठीक है, न्यू भोपाल में अलग, ओल्ड भोपाल सिटी में अलग, हबीबगंज में अलग. ओके. सो अगर आप लोग आज अपना फेसबुक या कोई सोशल मीडिया चेक करना प्रोफाइल, तो यू विल एंड आप इस एड को अच्छे से देखना. आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक वर्ड लिखेगा आपको, इंट्रोड्यूसिंग नीम एंड तुलसी कलेक्शन, द इंडियन कलेक्टिव अपैरल इन्फ्यूज्ड विद गुडनेस ऑफ नीम एंड तुलसी. नीचे देखिएगा, द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी, पेटेंट नंबर दिस एंड दिस. ओके. सो मीन्स जो आपका जो फैब्रिक है आपका, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद पेटेंट टेक्नोलॉजी, पेटेंट नंबर दिस, एंड विल फ्रॉम एडवांटेज एंड लिवन फ्रॉम एडवांटेज नेचुरल 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम एंड तुलसी. सो जो आपका ये जो पर्टिकुलर जो आपका फैब्रिक है, उस पर भी पेटेंट अप्लाई हो रहा है. आप रोज फैब्रिक पहन रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं इसमें कहने पेटेंट का लॉजिक. तो इसमें जो डाई हो रहा है, जो इसका जो आपका जो शर्ट का जो डाई है, वो डाई किस प्रोसेस से हुआ है, प्रोसेस इज पेटेंट. सो ये चीज आपको देखनी है. आपके आसपास काफी कुछ चीजें चल रही हैं लेकिन समटाइम्स यू इग्नोर इट. सो लेकिन इससे पार्ट ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी, राइट. सो दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोसेस, a novel process of dyeing and processing a natural textile product using natural dyes alongside neem and tulsi. तो ये पेटेंट का टाइटल था, तो इसको इन्होंने पेटेंट किया है. अब वो उस प्रोसेस को ये लोग कपड़ों के डाई में यूज कर रहे हैं और आपको फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है, राइट. अब हम थोड़ा पेटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. ये आपको स्क्रीन क्या दिख रहा है? स्टैंड दिख रहे हैं बैटबॉल के, जिस पर रन आउट होता है बेसिकली. हाँ, राइट. दिस आर द स्टंप्स, जो आपके स्टंप्स जो होते हैं आपके क्रिकेट में. ठीक है, राइट. तो बेसिकली पहले कुछ इश्यूज थे कि जब भी आपका रन आउट के डिसीजन होते हैं तो काफी गलत हो जाता था. कई बार एम्पायर को पता नहीं चलता था कि उसने डिसीजन सही दिया है, गलत दिया है, वो एक्चुअल मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाते थे. तो बड़ा प्रॉब्लम होता था, और कई बार बैट्समैन वगैरह भी आपका अपसेट हो जाते थे कि हमें गलत रन आउट दे दिया, हमें गलत स्टंप आउट दे दिया, राइट. तो अब इसके बाद देखिए, ये भी आपको एलईडी स्टंप्स नजर आएंगे. आप अगर आप अभी मैचेस वगैरह देखते हो इन दिनों, तो ये आपको काफी टाइम से एलईडी स्टंप्स नजर आ रहे हैं. तो ये भी एलईडी स्टंप्स भी आपका रचना में थोड़ा सा उसको म्यूट कर दीजिए. तो ये जो आपको एलईडी स्टंप्स है, ये भी आपको पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का पार्ट है. मींस इसको भी
एक इन्वेंटर ने पेटेंट किया हुआ है कि स्टम्प्स जैसे बोल्ट टच होगा ब्लिंक कर जाएंगे आपके, या एलईडी फ्लैश आउट हो जाएगी। तो ये जो इतनी सी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, उसके लिए वो ही इज अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम दिस सिंपल टेक्नोलॉजी। हर मैच में ये स्टम्प्स बने बनाए रहते हैं, पूरे इम्बाइब्ड होता है इसमें सर्किट, ये ऑर्गेनाइजर को देते हैं, पर मैच की फीस चार्ज करते हैं लैक्स ऑफ रुपीज, और शाम को वापस स्टम्प्स रिटर्न करने होते हैं। तो ये पेटेंट की पावर है। और ये है ब्रोंटे करमैन, ही इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी मैचेस किए होते हैं, तो यही बात कि उनको पता चला ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसका स्टम्प्स रनआउट का मोमेंट कैप्चर करना, तो उन्होंने एलईडी स्टम्प्स बनाए। अब देखिए आप, इन्होंने जहां जहां मैचेस होते हैं, जैसे कि इंडिया में होते हैं, श्रीलंका में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, वेस्ट इंडीज जो काफी सारे आइलैंड्स हो वहां पर, वो एंटीगुआ वगैरह, टोबैको, ट्रिनिडाद टोबैको, सब जगह इन्होंने, न्यूजीलैंड वगैरह सब जगह इसका पेटेंट किया हुआ है, क्योंकि पेटेंट इज ए टेरिटोरियल राइट। जहां जहां आप अप्लाई हो राइट लोगे, वहां आपको राइट मिलेगा। तो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, शारजा दुबई में मैचेस हो रहे हैं, तो जहां जहां इनको मैचेस कराने वहां इन्होंने पेटेंट ले रखा है। जिम्बाब्वे में मैचेस होते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कुछ कंट्री, नेपाल, अब नेपाल में मैचेस ही नहीं होते, तो वहां पेटेंट कराने क्या फायदा। या कुछ कंट्रीज हो सकती है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रिया, या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज में जैसे कि लग्जमबर्ग, वहां पर मैचेस ही नहीं होते, तो वहां पर पेटेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका कमर्शियल बेनिफिट है, तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। तो बेसिकली ये इनका पेटेंट था, इसका टाइटल था सिस्टम फॉर इंडिकेटिंग मूवमेंट ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन ओरिएंटेशन टू अनदर पोजीशन ओरिएंटेशन। तो जैसे आपका स्टंप पे बॉल लगेगी और वो थोड़ा फ्लिक होगा, थोड़ा हल्का सा जो आपका बेल से हल्की सी हवा में जाएगी, जैसे आपकी बेल्स जैसे डिस्टर्ब होंगी उस पोजीशन से, तो उस मोमेंट को कैप्चर कर लेगा और आपको एक सिग्नल देगा। जैसे दोनों बेल्स कॉन्टेक्ट लेस हो जाएंगी उस विकेट से, जैसे ऊपर जाएगा, तो उस मोमेंट को कैप्चर करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्योंकि क्रिकेट रूल ये कहता है कि दोनों आपकी एक बेल कम से कम हवा में होनी चाहिए आपकी। तो जब उसके दोनों हिस्से हवा में होंगे, वो उस मोमेंट को ये क्लिक कर देगा और आपकी एलईडी लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, और यू कैन कैप्चर दैट मोमेंट एंड यू कैन डिसाइड वेदर इट्स अ रन आउट और नॉट, राइट। सो ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने आपको दी है, और इनका पेटेंट का एक ये क्लेम इस तरह से बनता है। आप पढ़ सकते हैं क्लेम इसका, इट्स अ वेरी गुड पेटेंट। An assembly for indicating movement of an article used in a sporting activity from a first position orientation to another position orientation. The second position or orientation indicating an event during the sporting activity which influence an outcome of the sporting activity. The assembly comprising. तो basically it's an electrical circuit assembly. So उसमें आपको ट्रिगरिंग वगैरह को कैप्चर करता है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट्स के थ्रू आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो बेसिकली काफी कुछ है इसमें, लेकिन एक मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि ये जैसे दो बेल्स आपकी हवा में हो जाएंगी, तो उस मोमेंट को कैप्चर करके एलईडी लाइट ये ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पेटेंट जनरली किसके लिए मिलता है आपको, या तो प्रोडक्ट के लिए मिलता है, प्रोसेस के लिए मिलता है, और ये टेक्निकली एडवांस चीजों के लिए मिलता है। ऐसा मेयर कॉम्बिनेशन के लिए नहीं मिलेगा आपको कि आपने दो चीजों को मिला दिया और उसका रिजल्ट केवल उसका एड ऑन रिजल्ट हो गया, तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इट शुड सम टेक्निकली एडवांस, एंड इट शुड बी, इट हैज सम यूटिलिटी। जैसे आप अगर एलईडी लाइट बनाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, अंधेरे में आपको कुछ भी चीज आपको लाइट देगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन बनाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। तो जो भी आप पेटेंट इन्वेंशन फाइल करते हैं, उसकी कुछ यूटिलिटी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइदर प्रोडक्ट और प्रोसेस टेक्निकली एडवांस एंड हैज सम यूटिलिटी कैन बी पेटेंटेड। अच्छा, पेटेंट जनरली 20 इयर्स के लिए होता है। आफ्टर 20 इयर्स इट विल एक्सपायर, एनीवन कैन यूज इट। जैसे पैरासीटामोल, हर कंपनी पैरासीटामोल बना रही है क्योंकि इसका पेटेंट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, तो सारी कंपनी पैरासीटामोल मॉलिक्यूल बना रही है जो आपके बुखार में काम आता है, जो आपके हाई फीवर में काम आता है। ठीक है, बॉडी एक में काम आता है। ठीक है, और सबसे द ब्यूटी ऑफ द पेटेंट लॉ इज इट्स टेरिटोरियल नेचर। इफ यू प्रोटेक्टेड पेटेंट इन इंडिया, देन यू कैन एनफोर्स योर राइट्स इन इंडिया ओनली। यू कैनॉट एनफोर्स योर राइट्स इन कोरिया एंड यूएसए। सो दिस इज द वेरी लिमिटेशन ऑफ द पेटेंट राइट। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते इंडिया में पेटेंट कर रहे हो और आप अमेरिका में केस कर रहे हो, नो। if your patent is valid in US, then only you can put a case in USA. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे जिलेट है और सैमसंग है, एलजी है, जिनके प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, तो हर कंट्री में अपना पेटेंट सिक्योर कर रखती है जहां जहां उसके प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक इन्वेंशन के लिए एक ही पेटेंट होगा, अगर दो इन्वेंशन तो पेटेंट अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सेकंड इज दैट, आपको अपने क्रिटिकल पार्ट को, जब भी आप पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, अपने क्रिटिकल पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए।
जैसे कोई सेंसर की पोजीशन है तो पर्टिकुलर पोजीशन को एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सी पोजीशन आपने ली है, हॉरिजॉन्टल ली है, वर्टिकल ली है, किस एक्सिस पे ली है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शनल इंप्रूवमेंट, पहले 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 क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, ठीक है ना। जैसे पहले सेंसर था तो ठंडे पानी को डिटेक्ट नहीं कर पाता था, अब ठंडे पानी को डिटेक्ट कर सकता है, गर्म पानी को डिटेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि छोटे बच्चे आजकल, छोटे बच्चों को पता चल जाए कि गर्म पानी है तो गीजर को ऑफ कर दें, ऑन कर दें। तो वो इस तरह की चीजें जिससे कोई इंप्रूवमेंट आ रहा हो वो आपका पेटेंट का पार्ट बन सकता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। और पेटेंट फाइल करते वक्त यू हैव टू इन्फॉर्म एवरी एस्पेक्ट, आपको वो चीज छुपानी नहीं है। फोन लेना थोड़ी देर बाद। हाँ। तो आपको ये चीजें उनको बतानी, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी फीचर, कोई भी फीचर आपको छुपाना नहीं है, राइट। अगर आप छुपाते हैं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम। और आपका इन्वेंशन एक छोटा इन्वेंशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं बड़ा इन्वेंशन हो। आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा हीट ट्रांसफर जो होता है आपका, दो लेयर के बीच में अगर अगर दो सैंड की लेयर है और बीच में पानी भर देंगे आप, तो हीट ट्रांसफर हो सकता है। और हीट ट्रांसफर कैसा होगा आपका, जो अंदर का जो हाई टेम्परेचर है वो, उसकी जो भी गर्माहट है वो बाहर निकल जाएगी इवेपोरेशन के थ्रू। तो एक अफ्रीकन कंट्रीज में ये इस तरह का इन्वेंशन डेवलप किया इन्होंने कि एक 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 मतलब एक केविटी बनाया जिसके दो लेयर बना दिए, और द लेयर वाज होलो, और वहां पर उन्होंने भर दिया, सैंड फिल कर दिया इन्होंने, और सैंड फिल करके उसके अंदर पानी चला दिया। अब पूरा पानी सैंड के ऊपर सारा पानी भर गया। अब जो अंदर वाला लेयर है उसके अंदर उन्होंने सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह रख दिए, और ऊपर से वेट क्लॉथ या डैम क्लॉथ उस पर रख दिया। तो क्या होगा, जो भी अंदर की गर्माहट है वो सारी बाहर निकल जाएगी ऑपरेशन के थ्रू, और अंदर एक मतलब एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर अपने को डिटरमाइन टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं या आपके जो फ्रूट्स हैं वो 4-5 दिन तक या 3-4 दिन तक खराब नहीं होंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और इसका देखो, ये देख सकते हो आप, ये इस तरह का सिस्टम है, काफी सिंपल सिस्टम है। तो एक सिंपल भी आपका एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है आपका, वो आपका पेटेंट हो सकता है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वहां पर ये काफी यूजफुल सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से देखा होगा आपने, एक और एक सिंपल सॉल्यूशन है, कैंटन ली है, ही इज फ्रॉम नैरोबी। तो इन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची है जो जो शूज पहन के आई है अपने टेम्पल पे या चर्च पे जहां भी, तो उसने देखा वो काफी छोटे हैं शूज उसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों वाई शुड नॉट आई मेक अ शूज विच इज एक्सपांडेबल एंड कॉन्ट्रैक्टेबल, जिसको मैं बड़ा भी कर सकूं छोटा भी कर सकूं, और हर फैमिली मेंबर इस पर रिक्वायरमेंट उसको पेन यूज कर सके। तो उन्होंने देखिए, आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे दिए इन्होंने, 1 2 3, थ्री मेन प्लेसेस। तो यहाँ पर उन्होंने स्टिचिंग कर दी उसकी क्लिप की। तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इसका पेड़ चौड़ा है तो उसको थोड़ा प्रेस कर दो, किसका लंबा है तो उसको खोल दो। तो 3 जगह इन्होंने पॉइंट कर दिए। इसका पीछे वाला हिस्सा एडी लंबी है तो उसको पीछे से आगे पीछे कर लो। तो 3 जगह इन्होंने इसको एक्सपेंशन दे दिया। तो इतने सिंपल चीजों को भी आप पेटेंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसमें यूटिलिटी भी है, इट्स अ प्रोडक्ट एंड इट्स अ इन्वेंटिव, इट्स अ टेक्निकली एडवांस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कोई भी पेटेंट होगा तो इस तरह से उसको पेटेंट मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे इसको पेटेंट, ये इस सब्जेक्ट को पेटेंट मिल सकता नहीं मिल सकता। तो सपोज कीजिए जैसे इंडिया में है तो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री। मेथड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट पेटेंटेबल, तो फिर हर डॉक्टर उसको क्लेम करेगा कि साहब मेरा मेथड है। तो पेशेंट को काफी महंगा पड़ेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरह से एटॉमिक एनर्जी के लिए हमने मना कर रखा है, एटॉमिक एनर्जी से इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कर सकते आप लोग। या कोई डिफेंस गन्स वगैरह उसको पेटेंट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो जहां पर पेटेंट नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको कुछ चेक ही नहीं करना, भले इन्वेंशन कितना एडवांस हो। अगर गवर्नमेंट ने उसके लिए पेटेंट के लिए बैन कर रखा तो आप उसको कितना ही आपको नोवेल को अलाउ नहीं करेंगे। तो वहां पर हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट मैटर है वो पेटेंट इज अलाउेबल और नॉट। अगर अलाउेबल है तो फिर हम देखते हैं इट्स अ नोवेल और नॉट, इट्स इन्वेंटिव और नॉट, इट्स हैज यूटिलिटी और नॉट। देन वी चेक द डिस्क्लोजर कंप्लीट और नॉट। हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारे ड्रॉइंग्स दिए, सारे क्लेम्स वगैरह प्रॉपर सेट किए, सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, सारी टेम्परेचर रेंज कवर की है, सारे एक्सपेरिमेंट्स कवर किए, सारी डिटेल्स। फिर हम देखते हैं कि कंप्लीट है नहीं है। इफ इट इज कंप्लीट देन वी कैन गो फॉर फाइलिंग अ पेटेंट, देन एग्जामिनर विल कंसीडर इट फॉर द फाइनल ड्राफ्ट, ओके। लेकिन अगर इसमें कोई भी चीज मिसिंग है तो एग्जामिनर में रिजेक्ट योर पेटेंट। सो ये कुछ थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था अपना। और इसमें आप देख सकते हो कि आपका एक प्रोसेस भी पेटेंट हो सकता है, मेथड ऑफ मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रारेड हीटर्स।
एक मशीन भी आपका पेटेंट हो सकता है, एक आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर पेंसिल, चेयर और सीट भी आपको पेटेंट हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, पेंट्स, ड्रग्स, ये भी आपको पेटेंट हो सकता है, और इंप्रूवमेंट, चेयर विद फुट रेस्ट और रोटेटिंग चेयर, ये भी आपको पेटेंट हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेटेंट्स हो सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया 20 ईयर्स के लिए मिलता है, और ये जहां पर आप अप्लाई करोगे वहां पर मिलेगा। और कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए मिल सकता है आपको, जैसे कि बाइसाइकिल स्टैंड है, तो इसकी लेंथ कितनी लेंथ चाहिए इसको पार्किंग के लिए, जितनी बाइसाइकिल की लेंथ है, बिकॉज इट्स हॉरिजॉन्टल। सो इफ यू कैन गो फॉर वर्टिकल देन इट विल टेक लेस स्पेस, तो इसमें पार्किंग की काफी कम जगह चाहिए आपको। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप लोग इंप्रूवमेंट को, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच को पेटेंट के लिए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये एक आपका जो आप लोग प्रेस करते हैं घर पे, आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं जो अपने कपड़ों पे, जो ताकि उसको बिल्कुल परफेक्ट लुक दिया जा सके। तो इसमें देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे आपका कभी अर्जेंट टेलीफोन, मोबाइल पे फोन आ गया आपका, या किसी ने डोरबेल प्रेस किया, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। और अगर आपका ध्यान नहीं गया और प्रेस कपड़े पे लगा रह गया आपका, तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, इन्होंने एक ये इस तरह का एक अरेंजमेंट दिया है। तो जैसे आपका हाथ वहां से उस पोजीशन से हटेगा प्रेस के हैंडल से, तो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई हाथ रिमूव हो गया है। तो वही क्या करेगा, नीचे 34 और 22 जो है आपका अरेंजमेंट, इसको नीचे की तरफ ले आएगा, और आपका जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, वो आपके हीटिंग एलिमेंट से दूर हो जाएगा, एक गैप आ जाएगा, तो कपड़ा डैमेज होने से बच जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। तो इसको भी इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, और पेटेंट मिल चुका है इसको। तो सेल्फ लिफ्टिंग आयरन, तो क्या हो रहा है, आपका आयरन आपका लिफ्ट हो रहा है, आपका जो प्रेस हो रहा है लिफ्ट हो रहा है, और आपका कपड़ा डैमेज होने से बच रहा है। बस केवल इतना सेंस कर रहा है कि आपका जैसे हाथ उठा तो अपने आप वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। इस तरह से एक और एग्जांपल हो सकता है, जहां पर जैसे आपका हाथ हैंडल से हटेगा तो स्विच ऑफ कर देगा उसको, पावर को, तो आपका प्रेस थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो एक दूसरा सोल्यूशन हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। सो ये कुछ एग्जांपल्स में आपको देना चाह, एक दो एग्जांपल और दे सकते हैं आपको। देख सकते हैं आप, एक पेटेंट की एक खासियत है कि आप जब भी आप पेटेंट अप्लाई करते हैं, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसको आप फंक्शनल लैंग्वेज में डालने की कोशिश करेंगे। जब ब्रश है तो ब्रश को आप लोग लिखेंगे क्लीनिंग आर्टिकल, आप ब्रश नहीं लिखेंगे क्लीनिंग आर्टिकल। कैमरा को लिख सकते हैं आप लोग इमेज कैप्चरिंग यूनिट, क्योंकि क्या फंक्शन कर रहा है उस टर्म से डिफाइन करिए। पेन पेंसिल को लिखे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, टू राइट समथिंग, तो उस तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो ज्यादा चांसेस अच्छे रहेंगे। जैसे कि बॉल बेयरिंग को यू कैन राइट प्लूरलिटी ऑफ बॉल्स। ट्रांजिस्टर को आप लोग लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विद कंट्रोल इलेक्ट्रोड। बैटरी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग स्प्रिंग को लिख सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग मीन्स। अब नेल्स, स्क्रू और रिवेट्स को लिख सकते हैं फास्टनिंग मीन्स। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक फंक्शन के रूप में दे रहे हैं। आप एक एग्जांपल देखते हैं क्लेम का। तो बेसिकली ये इनपुट डिवाइस का जो आपका जो टच पैड होता है, आपका एटीएम स्क्रीन होती है आपकी, जहां पर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है। ए डेटा इनपुट डिवाइस कंप्राइजिंग एन इनपुट सरफेस adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disposed below the input surface to detecting the position of the pressure. तो एक एग्जांपल दिया है हमने कि एक डेटा इनपुट डिवाइस है, इस तरह का डेटा इनपुट डिवाइस है जो आपका, उसमें एक इनपुट सरफेस है जो आपको प्रेशर, जो जिसपे आप लोकली आप प्रेस कर सकते हो, लोकली जिसपे आप प्रेशर लगा सकते हो, और वो सेंसर ऐसा लगा हुआ है उसके नीचे जो पता करता है कि प्रेशर कहाँ लगा है और अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर स्क्रीन है, तो 2+2, तो पहले 2 को सेंस करेगा, फिर प्लस को साइन को सेंस करेगा, प्लस फिर 2 को सेंस दे, फिर उसको कैलकुलेशन करके रिजल्ट देगा। तो आपका कोई सा भी टच स्क्रीन या कोई सा भी इनपुट डिवाइस का एक क्लेम हो सकता है। जैसे देखिए आप, कीबोर्ड भी इसमें कवर हो रहा है, माउस भी कवर हो रहा है, ठीक है, आपका टच स्क्रीन भी कवर हो रहा है, टच पैड भी कवर हो रहा है, फिंगरप्रिंट रीडर भी कवर हो रहा है, आपका जॉयस्टिक भी कवर हो रहा है। तो ये मल्टीपल डिवाइस को कवर कर रहा है एक सिंगल इन्वेंशन। तो जो भी प्रॉपर इनपुट डिवाइस है उसका क्लेम इस तरह से बन सकता है। इस तरह से देखिए आप, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक आपका एथलेटिक शू का भी आप देख सकते हैं। तो एथलेटिक शू में आप देखिए आप कैसे हमने इसको डिफाइन किया है। एन एथलेटिक शू कंप्राइजिंग a left upper portion, a right upper portion, a sole portion integrally connected to said left portion to the said right portion, and means for detachably fastening said left upper portion to the said right portion. ओके, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो दो पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन, आपके जो शूज में होते हैं लेफ्ट और राइट।
और उसको नीचे आपका सोल पोर्शन है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए सोल पोर्शन इज देयर एज वेल एज मीन्स फॉर डिटेचेबली फास्टिंग सेड लेफ्ट पोर्शन टू द सेड राइट पोर्शन। जो आपके इसके लेसेस होते हैं, जिनको आप लोग कई बार वेलक्रो भी बोलते हैं, फीते भी बोल देते हैं हिंदी में, तो वो उसको हमने बोला है डिटेचेबली मीन्स फॉर डिटेचेबली फास्टिंग लेफ्ट पोर्शन, ताकि आप उनको टाई अप कर सकें। तो इस तरह से आप अपने पेटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस के पेटेंट को भी समझा सकते हैं आप इस तरह से। मेथड फॉर कार्बोनेटिंग बेवरेज कंप्राइजिंग द स्टेप्स, तो इसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग अलग टैंक में रख के फिर एजिटेट करते हैं, मिलाते हैं, तो ये एक प्रोसेस क्लेम हो सकता है। तो इस तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह से आपका जो बर्नर का जो क्लेम होता है, आजकल आपने देखा होगा, जो कई बार आपको गैस लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप लोग उसको ऑन कर देते हो, कई बार उसको अपने आप बंद हो जाता है हवा के झोंके से आपका बर्नर, और गैस लीक होती रहती है। तो उसके लिए काफी अच्छा इन्होंने एक इन्वेंशन तैयार किया, जिसमें आपका जैसे डिटेक्ट करेगा सिस्टम कि आपका बर्नर चालू है, लेकिन उसके अंदर वो चालू मतलब गैस की सप्लाई चालू है, लेकिन बर्नर पे आग फ्लेम नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये लीकेज हो रहा है, और उसको रेचेट मैकेनिज्म उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो कई बार अपने घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप शिकायत करते हो कि अरे गैस तो चालू कर रखी, लेकिन आपका बर्नर ऑफ है या मतलब फ्लेम नहीं है, तो वो लीकेज वाली प्रॉब्लम। तो उसके लिए काफी अच्छा एक सोल्यूशन है। तो इस तरह के जो भी सॉल्यूशंस है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, अपने हमारे लिए काम आ सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसमें कुछ इन्वेंटिव एस्पेक्ट है, जिसमें कुछ आपने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है, जिसमें आपने कुछ अपने कुछ इनोवेटिव पार्ट डेवलप किया है, ठीक है, कुछ नया मैनेजमेंट डेवलप किया है, तो उसके लिए आप पेटेंट के लिए सोच सकते हैं, और एक तरह से एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये अपना आज का जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा पेटेंट का। नाउ आई थिंक वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चन आंसर। Questions are here. Can I ask one of the questions? हाँ, आप पूछ सकते हैं और स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yeah. So what is the difference between IPR and patent? Actually, patent is a part of IPR. IPR is a broad categorization in which trademarks, copyrights, designs, okay, patents, trade secrets, various other intellectual property. So, patent is a part of IPR. And so various types of patents and this one IPR. IPR are generally 6 to 7 types. 4 I already explained: patents, trademarks, copyright, and design. One is your trade secret. One is the geographical indication. जैसे कि नागपुरी ऑरेंज, तो नागपुर का ऑरेंज फेमस है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आ जाता है। लेकिन आप लोग चूंकि टेक्नोलॉजी साइड से, तो उसका आपको ज्यादा मतलब नहीं, तो मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया उसको। अल्फेंसो मैंगो, ठीक है, आपके जैसे कि हो सकता है कुछ एमपी में कुछ चीजें फेमस हो, ठीक है ना, शायद गुना के आसपास की कुछ साड़ी का प्रिंटिंग फेमस है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। जयपुर का सांगानेरी प्रिंट है आपका, और ऐसे अलग अलग आपका कुल्लू शॉल्स है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ऐसे 7 टाइप के आईपीआर होते हैं, 7 से 8 टाइप के। लेकिन जो स्टूडेंट्स के पर्पज के लिए 4 इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेटेंट्स बेसिकली 2 तरह के पेटेंट होते हैं, एक तो प्रोविजनल और कंप्लीट। अगर आपका आइडिया कंप्लीट हो गया तो आप डिजाइन प्लान ऐसे पैटर्न्स होते हैं ना जी, यूटिलिटी पैटर्न्स, डिजाइन तो पैटर्न्स। नहीं, बेसिकली आई हैव टू इंडस्ट्रियल डिजाइन इज द डिजाइन पेटेंट, जो मैंने आपको बताया, जिसमें शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें जैसे आउटर शेप कंसीडर करते हैं। और जो यूटिलिटी पेटेंट जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस प्रोडक्ट, या फिर आपका जो जिसमें आउटपुट बेटर आ रहा है, फंक्शनलिटी बेटर हो रही है, या फिर आपका सॉल्यूशन मिल रहा है प्रॉब्लम, तो वो यूटिलिटी पेटेंट है। So will you please stop your slide sharing? And students who are interested to ask questions, they can ask. Anyone? Faculties, attendees, and any students who wants to ask the question? I think a student should come forward to ask any question, because it was mainly meant for the student, I think. So I think they should come forward. आप लोग पूछिए बच्चों, अगर कोई इंक्वायरी तो पूछ सकते हैं आप लोग, और हिंदी में भी इंग्लिश में जिसमें चाहे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। One question is here: can we patent a process or algorithm? नहीं, algorithm is not a part of patent, because it's clearly mentioned that in section 3 it is mentioned that algorithm cannot be patented. It is a barred subject matter. It is not allowed. But we can patent the process if we can show particular process steps, that how the computer program is working in various steps,
how it is decoding the text, how it is converted into secure form, how it is further disseminated, how it is further communicated. Then those processes we can patent. But simple algorithm we cannot patent. Okay, thank you, sir. Now I would like to proceed for the vote of thanks. Mr. Narendra Jude, sir, will you please proceed for the vote of thanks? Narendra, sir, are you there, sir? You are not audible. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It is an honor to have been asked to offer vote of thanks. Myself, Narendra Dubey from Rabindranath Tagore University. On the occasion of workshop, on behalf of Rabindranath Tagore University, I would like to thank our expert, Mr. Vikas Aswat sir, for taking out time from their busy schedule and enlighten us with their knowledge. Thank you, sir. I would also like to thank our Honorable Chair Chancellor, sir, Shri Santosh Shodesalji, Dean, sir, Dr. Sanjeev Gupta, sir, for giving permission to organize such a webinar. I want to thank all the faculties who have worked hard to make this event successful, and also thankful to all the listeners for being patient listening. I would end up my speech here. Thank you everyone for a part of this. एक लास्ट इंक्वायरी आया है जी सर। प्रोफेसर अमित खरवाड़े सर का, जी। कैन वी डू पेटेंट फॉर मटेरियल? बिल्कुल, वी कैन पेटेंट द मटेरियल एज अ कंपोजिशन, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी डन. We have to show what is the composition of material, what are the ratio of different elements, in what condition they are prepared, what is their strength. We can show the characteristics also. So it can be patented, no problem, sir. But it should be novel and it should have some advantage. Thank you, sir. Sir, further, if we have any questions related to this issue, so can we mail you? हाँ sir, you can mail. If there are some basic inquiry, you can mail. We will definitely reply to it. So sir, I think we can close the session. Yes, sir. Definitely. And if any student can want to ask anything, then I think this is the last opportunity. Sir, Otherwise, students request for these slides. If you want to share this slide, I will share the slides to interested students. And okay. Required your mail ID also, sir. Then, I think you already communicated to me now. Yeah, I will supply the mail, but slide I do not have. Will you please share it? Then I will supply to the. Okay, I will email you. No problem. Okay. Thank you, sir, on behalf of RNTU and whole engineering team. I would like to thank Mr. Vikas Aswat sir for your valuable time. Thank you, sir. Thank you, ma'am. From my side, the session is complete. Thank you, sir. Thank you once again. Thank